Happy Women's Day. Yes, today is 8th of March and we are celebrating 112th International Women's Day throughout the world. हमारे यहाँ भी बहुत सारी टीचर्स हैं. अब चूँकि रमज़ान है हम उसको उस तरह तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कुछ टीचर्स से जानेंगे कि कितना मुश्किल होता है अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना. एक वी हैव हिबा मैम विद अस. We are going to ask her what difficulties she is facing in managing her personal life along with the professional life. So Hiba ma'am, can you tell me how you are managing, how you are dealing with the difficulties, the challenges you have, especially in the month of Ramadan? So first of all, I would like to wish all my viewers a happy Women's Day to all. And as Inthab sir asked me how difficult my life is, so it is quite difficult, but we can manage as we are women, and women are superwomen. Yes. So we manage all the things, and especially in Ramzan, it is very much difficult for us because we have to nurture our families also, and we have to look for them, and we are also in our school exams are going on, so we have to check the copies also, maintain the syllabus, maintaining the curriculum, maintaining the decorum in the. What message would you like to give to our viewers, to the ladies especially? Okay, so first of all, I would like to say that woman is not just a name; it is an identity and a strength and a notion to be respected. So where women are respected, I think prosperity follows there. So we should always respect the women around us because the role they are playing in our lives are commendable, and we cannot imagine their contribution. We cannot imagine our lives without them. Our life is incomplete without them. So I would like to tell my viewers, please always respect the women around you, and let's uplift them and support them in their journey. Thank you so much. Should they continue their professional life also with their personal life? Yes, of course. They should not have to backstep because sometimes women what they do sometimes with along with the pressure what they do they backstep. But we should not have to backstep. We should continue our journey. So until and unless they continue the journey, they will not learn anything. So that's why. Thank you, ma'am, for your opinions and views. I hope the audience will get benefited from it. Now, I would like Arfa ma'am to come over here and share her views also. तो हमारे साथ हैं हमारी बहुत सीनियर टीचर आरफा मैम. आरफा मैम को हम जो है जानना चाहेंगे आरफा मैम से कि कैसे वो अपनी लाइफ को जो है मैनेज कर रही हैं घर पर और स्कूल के अंदर भी तमाम काम होते हैं जो वो अच्छी तरीके से करती हैं और घर भी पूरा संभालती हैं, तो वो कैसे कर पाती हैं उनसे. वेरी हैप्पी वुमेंस डे. देखिए लेडीज़ की लाइफ जो होती है कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होती ज़रूर है, लेकिन इसको मैनेज करना ही हमारे बस में होती है कि हम किस तरीके से इसको मैनेज करके चलते हैं. फैमिली हमारे ज़िंदगी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लेडीज़ को कोई मुश्किल नहीं है अगर वो बाहर भी अपना मैनेज कर सके. देखिए लेडीज़ जो होती है उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है और होती भी एक, मैं लेडीज़ हूँ, मैं ज़्यादा बात को जानती हूँ कि जॉब करके साथ साथ फैमिली को संभालना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. लेकिन अगर लेडीज़ चाहे तो ये बहुत इजी हो सकता है अगर वो अपनी जॉब को भी अपनी लाइफ का एक पार्ट समझे. तो हम जिम्मेदारी अगर अपनी फैमिली की ले सकते हैं तो हम अपनी जॉब की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी हिस्सा निभा सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो है हमारी ख़वातीन जो हमारी बहनें होती हैं वो जो है बहुत हिम्मत हार जाती हैं, पीछे हट जाती हैं और वो सोचती हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम कैसे मैनेज करें, और कभी कभी घर से उनको परमिशन नहीं मिलती है. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा जिन लोगों को घर से परमिशन नहीं है बाहर जाके जॉब करने की तो वो ऑनलाइन भी जॉब कर सकती हैं. काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें घर बैठे ही हमें अपनी जॉब देती हैं, जैसे कि बैक ऑफिस जॉब हो गई, ऑनलाइन मार्केटिंग जॉब हो गई. ये सारी जॉब हम घर बैठे भी कर सकते हैं. इससे भी अपना करियर बना सकते हैं. लेडीज़ के लिए करियर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये मैं जान सकती हूँ, लेकिन अगर लेडीज़ चाहें तो अपने घर पर भी रहकर वो कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकती है, वो अर्निंग कर सकती हैं. चलिए बहुत शुक्रिया आरफा मैम ने अपने व्यूज़ रखे और आपको सजेशंस भी दिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाकर ही जॉब करें, हम अपने घर में रह के अपने ऑफिस में अपने घर में रहकर ही उसको जो है मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा जो है वो प्रॉस्पेरस बना सकते हैं. अब हमारे साथ हमारे स्कूल की बहुत सीनियर टीचर, वेरी टैलेंटेड शगुफ्ता मैम हमारे साथ हैं.
आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कभी कभी ये आता है मन में कि काफ़ी ज़्यादा यार बहुत हेक्टिक हो रहा है, मतलब स्कूल का भी काम है, घर का भी काम है, बहुत ज़्यादा खलत मलत हो रही है चीज़ों की, तो छोड़ देना चाहिए, समझो स्कूल वो कर देना चाहिए, जी, कैसे जी। मैनेज करें? कभी ऐसा भी ख्याल जी आता है? जी आता है, बिल्कुल आता है। जब काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है और लगता है कि नहीं अब मैनेज नहीं हो पाएगा, या अपनी ही खुद की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तबीयत ख़राब होने लगती है, तो ऐसा पॉइंट आता है कि हम वीक हो जाते हैं और लगता है कि अब ये चैलेंज जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जो लाइफ हमें चैलेंज दे रही है। बट हम फिर भी अपने आप को मोटिवेशन करते रहते हैं, क्योंकि अपने से बड़ों को देखते हैं और आप लोगों से भी सीखते हैं कि अपने लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी नहीं सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मेहनत तो करनी चाहिए। और चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सभी के लिए है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो घबराएंगे ज़रूर आप एक पॉइंट पर, मगर इंशाल्लाह जब आप उसको करना शुरू करेंगे तो आपसे वो हो जाएगा। तो श्रोताओं, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज आप आज देना चाहती हैं? मैं यही देना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ हमें देख रही हैं, जो भी हम लेडीज़ ज्वाइन करी हुई है इस टाइम और हमारी वीडियोस को देख रही हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग कभी भी किसी भी चीज़ के लिए भी घबराएं नहीं, परेशानी हो, ये नहीं सोचें कि अरे ये कैसे करना है, ये किस तरीके से होना है। आप पहले मुतमईन हो हर चीज़ से, कि पहले शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको दिया है वो बहुत बेहतरीन दिया है, ठीक है। कभी ऊपर नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे को भी देखना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी कोई भी परेशानी आपके सामने पेश आ रही है तो आप सब्र से और शुक्र से उस काम को मुतमईन होकर कीजिए और इंशाल्लाह वो सारे काम आपके हो जाएंगे। थैंक यू सो मच श्रोताओं, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत आपने जो है एहसास दिलाया इस बात का कि चीज़ें कभी भी रुकती नहीं है, होती रहती हैं और हर्डल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, लेकिन हमें डटे रहना चाहिए जी। और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है